बच्चों आज हम जो है आपको बताएंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। टुडे आई विल टेल यू व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग द बॉडी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर चार्जिंग द बॉडी we use friction or rubbing method. In other way we can say by friction or rubbing the body can be charged. The body can be charged. By friction or rubbing only insulators are charged. What are insulators? Insulators are those substances in which there are no free electrons. There is no free electrons inside insulators. Each electron inside insulator are tightly bound with the nucleus, and that is why charge cannot flow through. So by friction method insulators are charged. By friction method, insulators are charged. Very good. I think you have properly understood that insulators can be charged by friction or rubbing method. In this method, a body is rubbed with another body. Then there are transference of electrons from one body to another body, and the body from which electrons are transferred become positively charged body, and the body which receives the transferred electron becomes negatively charged body. In this method, a body is rubbed with an other body. In this method, a body is rubbed with another body. In this way, there are transference of electrons from one body to another body. The body from which
electrons are transferred becomes positively charged body, becomes positively charged body. नोट कर लिया? And the body which receives but transferred electrons becomes negatively charged body. Charge. And the body which receives the transferred electrons becomes negatively charged body. Now we take example. Lightning produced in the cloud. एग्जाम्पल क्या है? इन द क्लाउड. भाई ये देखा होगा कि बादलों में जब बरसात वाले दिन देखते होंगे आप, तो एक बिजली सी चमकती है. बिजली कहीं ना कहीं गिर गई, फलाने जगह पे बिजली गिर गई. क्यों? ये भी फ्रिक्शन मेथड से होता है. होता यह है कि जब piece of cloud is rubbed with another piece of cloud, then there are transference of in huge amount of electrons, from one cloud piece to another cloud piece. In this way, they are produced positive charge body and negative charge body. Between positive charge body and negative charge body, electric potential is developed between them, and due to electric potential difference, electric field is created in that region, and due to electric field, electric force is produced. That is why when electricity, yani lightning, falls on any place, then it causes very destruction. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये बिजली कहीं गिरती है तो काफी विनाश लाती है. वहां पर क्या होता है कि भाई बिजली गिरेगी तो क्या होगा, वहां पर करंट ह्यूज मात्रा में रहेगा और फिर करंट ज़्यादा होगा और वहाँ पर भी आग भी लग सकती है, क्योंकि H बराबर या I²RT के फॉर्मूले से आप कह सकते हैं. समझ में आता है कि नहीं? तो वहाँ पर ज़्यादा विनाश हो सकता है.
तो लाइटनिंग आपने देखा, लाइटनिंग भी इसी का एग्जांपल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अनदर एग्जांपल, व्हेन ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट है, is run with silk cloth. When glass plate is rubbed with silk cloth, then electrons are transferred from glass plate to silk cloth. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ग्लास प्लेट से सिल्क क्लॉथ पर, तो यहाँ पे एक्सिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे ना भाई, निगेटिव इधर आ गया तो निगेटिव कम हो गया। इनिशियली ग्लास प्लेट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड होता है, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उतने ही इसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। बात समझ में आ गई? तो होता ये है तभी न्यूट्रलाइज रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे, अब होता क्या कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हुए ये भी समझनी चाहिए, किसका भी रीजन कि जब रब करते हैं तो थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है, और जब थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है तो इनसाइड ग्लास प्लेट जो एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो फ्री हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकला, और बाहर निकल करके वो दूसरे जिससे टच में था इन द रबिंग पोजीशन, वो दूसरी बॉडी में जाकर के ट्रांसफर हो जाता है। अब जिस एटम से इलेक्ट्रॉन डिटैच हुआ, जिससे अलग हुआ, वो एटम अब पॉजिटिव आयन बन गया, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन गया। तो इस तरीके से इस पे जहां से ट्रांसफर होता है वहां वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, चार्ज बॉडी बन जाती है। आ गया समझे? अच्छी तरह समझ में आ गया, इसकी पूरा रीजन भी आ गया समझ में। तो इस तरीके से ट्रांसफर हुआ तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हुआ, पॉजिटिव बॉडी हो गया, और ये आपका निगेटिव बॉडी हो गया। आ गया समझ? जितना इस पे पॉजिटिव होगा उतने ही अमाउंट में यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, चार्ज पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज्यादा, मतलब जितनी मात्रा आपके पॉजिटिव की इस ग्लास प्लेट पे होगी उतनी ही अमाउंट सिल्क क्लॉथ पे होगी निगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव और निगेटिव की जो वैल्यू है वो बराबर है। आ गया समझ? यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल इन सिल्क क्लॉथ। आ गया बस। तो इस तरीके से बाय फ्रिक्शन मेथड इंसुलेटर्स आर चार्ज। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, why can the conductor not be charged by friction method? भाई इंसुलेटर तो चार्ज कर सकता है, हमने इनिशियली आपको पहले बता दिया, लेकिन कंडक्टर तो क्यों नहीं चार्ज किया जा सकता इजीली? उसका रीजन भी आपको बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आज इन द एग्जामिनेशन। Why is the conductor why can the conductor not be charged by friction method? कंडक्टर को फ्रिक्शन मेथड से क्यों नहीं चार्ज किया जाता इजीली? मेथड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका आंसर क्या हुआ? कंडक्टर क्यों नहीं जाता? कंडक्टर कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड बिकॉज
inside conductor electrons are free to move, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और मूव करने के लिए फ्री होते हैं इन zigzag पोजिशन, इधर उधर. ओके. When conductor is rubbed with another body like glass plate, then electrons move from one region to another region, यानी चार्ज मूव फ्रॉम वन रीजन टू another region. Then at that moment the other charge particle move automatically towards the electrons free region, electrons free zone, and neutralize the effect. आ गया वो समझ. फिर समझिए, होता यह है कि जब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, जब इनको हम रगड़ते हैं किसी दूसरी बॉडी से, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक जगह से जब दूसरी जगह पर, यानी एक रीजन से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो जिस जगह से मूव किए वहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्री जोन बन गया ना. तो अदर रीजन से, फ्रॉम अदर रीजन, जो द पार्टिकल फ्रॉम अदर रीजन मूव ऑटोमेटिकली टूवर्ड दैट जोन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट. समझ में आता है कि नहीं? तो इसको जो है, इस प्रभाव को वो न्यूट्रलाइज कर देता है. यानी वहाँ पे रीजन है, जैसे वहाँ पे मान लिया कि जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी एक रीजन से दूसरी जगह पाए तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहाँ पे पॉजिटिव हो तो अदर रीजन से इलेक्ट्रॉन जा करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. और ये भी कह सकते हैं कि द चार्ज कैन पास थ्रू द कंडक्टर, या दूसरी भाषा में आपको बताएं, मतलब दूसरी भाषा क्या कि दूसरे वर्ड्स में बताएं. होता यह है कि जब इनको रद्द किया जाता है तो ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्केप कर जाते हैं. क्यों? क्योंकि चार्ज कैन पास थ्रू, इलेक्ट्रॉन कैन पास थ्रू द कंडक्टर. तो यही रीजन है कंडक्टर कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड. आ गया समझ के लिए? चलिए लिख के बताते हैं. When conductor is rubbed with another body like glass plate, then inside conductor charge move from one region to another region. And then from other region
other region, charge particle move automatically towards electron free zone. Free zone to neutralize effect. To neutralize यूनिटलाइज कर सके। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी आंसर को हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, देन from other region charge particle move towards automatically to neutralize its effect. That's why conductor can't be charged by friction method. आगे वो समझ, जैसे मान लिया, अब हम आपको बताएं सवाल इस बात का है कि जैसे ये आपका ये कंडक्टर है और ये आपका इंसुलेटर मान लीजिए, यानी ग्लास। आप इसको इससे रब करते हैं, तो जब इसको रब करेंगे, ये कंडक्टर है, इंसुलेटर, आप सपोज कीजिए इसको हम रब, जब इसको हम रब करते हैं, इसी के साथ रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ट्रांसफर हुआ, इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव करने के लिए, बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये होता है कि जैसे मान लिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन, तो इसके एक्सिस इलेक्ट्रॉन आया, चूंकि ये कंडक्टर है, तो यहाँ पर फौरन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्लस बना, यहाँ पे प्लस बना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फौरन नीचे जाकर के इसको रिप्लेस कर देता है, इसको रिप्लेस कर देता है। तो कंडक्टर तो है उसको चार्ज नहीं कर सकते। या यहीं पर अगर प्लेस में अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन दिया इसमें, तो यहाँ पॉजिटिव बना, तो अदर प्लेस से जाकर के इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, जब रब करते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि चार्ज बॉडी को, ये कंडक्टर को हम फ्रिक्शन मेथड में चार्ज नहीं करते। तो आप क्या क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड।